Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. Further ado, let us watch the short film by Royal Stag Barrel Select large short film Shunyata. Now, Jackie sir, a question for you. What motivated you to do this movie and how was your experience while working with Mr. Chintan? First of all, hi guys, namaskar. दोपहर को मिल रहा है बहुत दिन के बाद अच्छा लगा. Good afternoon to everybody and lady, thank you. Chintan, thank you for casting me in your film. क्या question था मैम? What motivated you to do this film and your experience while working with sir? Experience has been superb. I like any young director. I think it's something. I've been through a lot. I've been through a lot of directors. So for me, anybody who is young and new and with different ideas and nice ideas, I'm there with him. और मेरे को मोटिवेशन ऐसा ये था कि कुछ हिस्से तीन बत्ती के थे, मतलब मैं मर्डरर तो नहीं था मगर मैं रफ था. I was a rough kid, सड़क पे पैदा हुआ था और सड़क की बातें जानता था. जब इनने आके कहानी सुनाई और ऐसे भी मैं शॉर्ट फिल्म करता हूँ और कोई मेरे पास आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना बोलूँ, कोशिश करता हूँ ऐसे. I should not say no to anybody who comes with so much of expectation. I'm a little senior actor. He's definitely a young boy right now. He's got his career ahead of him, and he thinks that I can justify the role. It's my duty to do it. And so I did it. I thought it was something which I don't want kids to do what I have done in the film. The kind of thought is right कि भाई मैं बन गया हूँ ये क्योंकि मेरे बाप ने मेरे को या मेरे माँ ने कभी लाफा नहीं मारा तो मैं सिगरेट छोड़ा नहीं या मैंने ये सारी हरकतें छोड़ी नहीं. मगर कोई छोड़ सकता है जहाँ पे वो बैठ के चाय पीता है ऐसे काम करने के बाद. अगर उसको सुधारना चाहता है तो कोशिश करता है. मगर किस तरह से नाकाम और किस तरह से उसकी कहानी बढ़ती है. पर जिस तरह से इन्होंने पेश आया है बहुत खूबसूरत किया है. चिंतन, शुक्रिया आपने मुझे लिया और बाकी मैं क्या बोलूँ. Thank you, sir. Now, Mr. Chintan, a question for you. What importance do you think short films hold in the film industry? I think it's great for people starting out like me. It gives me a platform to showcase something that I can do and hopefully get me better work. To speak specifically about this, I've signed a regional feature film because I had the showreel. So it definitely helps. It definitely helps because that's the only way that you can actually afford to, as a director, it's very expensive to make films. So short film is what you can realistically do. So I think it's really important, especially for people starting out. But even senior directors have gotten into it because they really enjoy the medium. So I really enjoy watching their work as well. Okay, and how do you think that the Indian view? People are still exploring it. People are still, finding what they like. So I think it's going to take some time before short films become like a way of life. Maybe there'll be platforms which will have a short film releasing every week, but it's not happening yet. So, but I think there's definitely a lot of scope. Thank you. Now, Jackie sir, what do you think about the Royal Barrel Select large short films as a platform? जो भी है जो भी प्लेटफॉर्म देता है सही है. जैसे बोल रहे थे कि नए बच्चे आ रहे हैं मगर उनको कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, कोई मतलब इसका धंधा क्या है वो भी नहीं मालूम है. अपने खिस्से से पैसा डालना पड़ता है. अपने बच्चों को टैलेंट स्कूल में पढ़ लिख के निकल तो जाते हैं, यहाँ वहाँ एजेंट लोग घुमा तो देते हैं, मगर जो टैलेंट है वो टैलेंट को सपोर्ट करने वाले
है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर बहुत कम है बिड़ू। तो ऐसा जितना प्लेटफॉर्म मिलेगा, जितना इन लोगों को सपोर्ट मिलेगा, अच्छा है। ये है कि उन बच्चों के खिस्से में हाथ डालने से बेटर है बाकी के बड़े बड़े लोग हैं उन लोग सपोर्ट करें। अगर कोई स्क्रिप्ट सही लग गया तो दे शुड कम हेड एंड सपोर्ट इट। ये मेरा चौथा पांचवा फिल्म है, शॉर्ट फिल्म। मैंने उस पार की थी आरती काड़ो जी के साथ, नंबियार के साथ सोप की थी, मखमल की थी मैंने और फराज भाई के साथ, और खुजली की सोनम नायर जी के साथ। उसके बाद आपने मौका दिया है और शॉर्ट फिल्म में मैं करता रहूँगा। कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आएंगे मैं ना नहीं बोलूँगा, वैसे देता नहीं हूँ और लूँगा नहीं, वैसे भी देने वाले है अलग अलग डिपार्टमेंट। ये इन लोग से क्या लेने का बाबा से, इनका पैसा जितना इनको दे उतना बेटर है। ऐसे टैलेंट को नर्चर करना चाहिए। Such talent should be taken care of. They should not be putting my hand in their pocket and think, what next? And then I have to. It's good that there is a stage like this, which Sonaji, what's the lady? हाँ, ये स्टेज दिया हुआ है इन लोगों ने, स्टैग वालों ने, अच्छी बात है ये। बाकी तो ऐसे और बहुत अच्छे और निकले। मैं तो चाहता हूँ कि there should be many more. एंड जो आए आज देखने को दोपहर को अपना काम वाम छोड़ के ये काम के अंदर, ये अपने ये भी काम है बड़ू, सॉरी। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग जैसे बच्चों को सपोर्ट करें। मैं तो अपने आंख बंद, मैं तो बिंदास घुस जाऊंगा, मेरे से जो निकाल सकता है, मेरे से जो होता है मैं करूँगा। आई एम ऑल आउट फॉर माई स्टूडेंट्स, फॉर द यंगस्टर्स, फॉर द फिल्म मेकर्स, एंड थैंक यू फॉर ऑफरिंग अस दिस स्टेज, स्टैग एंड द लेडी आउट देयर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग हिम। नेक्स्ट टाइम पिक्चर भी बनाने का पैसा दे। हाँ, थैंक यू, सॉरी। Thank you, sir. Now, Chintan sir, do you feel that short film possess a particular genre in India, or is it topic oriented? No, I don't think there's a specific genre. What I've seen works in short films generally is a punch in the end, because you have very less time to really be invested in your character. You know, in 10-15 minutes, it's not a feature film where you have a setup, exposition. So short films, you try as much as you can to put them in the shoes of the protagonist, but eventually you have to give them something in the end, something which either shocks them or something which they don't expect. You have to beat the expectation, I feel. That's what, I mean, most Oscar-winning short films do that, and that's my observation. So I didn't intentionally start out to do that, but it was working naturally in this story, so it helped me, I think. Thank you, sir. Now, any questions from the media? जैकी सर, जी, जब आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसके बाद भी आपने क्या सोचा कि ये स्क्रिप्ट करनी चाहिए? एंड आपका कोई ऐसा पुराना एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहोगे उस टाइम का? हाँ, मेरे को मेरी माँ ने लाफा मारा। सॉरी। प्रणाम। पहले तो आप कहाँ की हैं, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सोनू है, पैरिस बॉलीवुड से हूँ मैं। ठीक है बड़ू। तो जब आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ा तो क्या सोचे कि मुझे बस ये फिल्म करनी है? वही मैं बोल रहा हूँ, करनी इसीलिए थी क्योंकि कोई सुधर रहा है, कोई समझ रहा है तो अच्छी बात है। जो मैं कर चुका हूँ, जो बुराई मेरे में है, जो मैं जिस तरह से क्या बन गया हूँ, वो कोई ना बने, वो मेरा दिल करता है। अगर मैं किसी के साथ बैठता हूँ, उठता हूँ, कोई बच्चे को देखता हूँ और लगता है कि इसको इस जगह पे नहीं जाना चाहिए, तो वो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं भी था। अगर मैं भी कहीं भी जा सकता था, अगर मुझे कान के नीचे, या मम्मी मेरे को पंच मारती थी, लाफे नहीं मारती थी, वो पंच मारती थी या तो कोनी मारती थी, तो कोनी मारी तो मैं सुधर गया। जब आपने ये स्क्रिप्ट लिखा तो आपको कब लगा कि जैकी सर से अच्छा कोई और कर नहीं सकते इस रोल को? वो आई थिंक पहले विजुअल से ही मुझे, मतलब आई कुड, वो जो एक टफ रगेडनेस जो है एंड द स्ट्रीट लिंगो, द इंटेंसिटी जो उनका है, वो एक्चुअली बहुत ही एम्बिशियस ड्रीम कास्ट था। मुझे लगा नहीं कि कभी यू नो जैकी सर काम करेंगे, तब सोचा कि चलो रेफरेंस लेके लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। एंड क्या रेपुटेशन है मेरा। सर पहली बार हम वर्किंग विद, मैं पहले गया ना 4। थैंक यू फॉर कास्टिंग मी। चिंतन सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस जैकी सर के साथ काम? amazing. Just he's been so supportive. He's been so nice to us. It's I mean, one day we spilled the shoot and puri raat we shot with him, and the next day he had to go for a shoot early morning. He didn't get any sleep that day, but he's just been extremely supportive. I couldn't have had a better actor to work with. It's for the first project. लेकिन ना जैकी सर के पास स्क्रिप्ट लेके गए तो कितना टाइम लगा इनको कन्विंस होने के लिए? पहले तो उन्होंने फर्स्ट मीटिंग उन्होंने मुझे पूना फार्म हाउस में बुलाया था, तो 3 घंटा पहले आई थिंक वी डिस्कस्ड ओनली द कैरेक्टर ऑफ मधुर, बट नाउ इन द हाइंडसाइट मुझे लगता है कि शायद वो मुझे टेस्ट कर रहे थे कि उनको पता है क्या बोल रहे हैं कि नहीं।
तो because I was surprised, I didn't expect कि someone's going to be so detailed about it, but it was a good chat. उसके बाद he took his time to be convinced about it, but एक बार convince हो गए फिर he was on it. Like उन्होंने जरा भी इसको short film की तरह treat नहीं किया है. We had a look test, पूरा feature film में जैसे काम होता है, exactly he's done that. He's not given it stepmotherly treatment to it at all. So that was a great learning experience for him. His humility and his humbleness is something I would really like to learn from him. बाबू बिंदास। हाँ। हमने देखा है हॉलीवुड में देयर वाज अ ट्रेंड लाइक दिस कि वहाँ पे बड़े स्टार्स जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज या फिर शॉर्ट फिल्म्स में काम करते थे, बट बॉलीवुड में ये ट्रेंड क्वाइट नया सा है. सो व्हाट डू यू थिंक दिस ट्रेंड इज जस्ट गोइंग टू टेक मींस लाइक फिल्म्स एंड बॉलीवुड टू व्हिच प्लेस? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यार, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री समझा बड़ू, बॉली पॉली मौली टॉली कॉली लफड़े हो, बहुत लफड़ा है बड़ू, मगर जान बराबर बोलता डालेंगे. एवरीवन कॉल्स इट दैट वे. आई थिंक वी शुड कॉल इट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. मगर खैर बोलने का मतलब है डार्लिंग, आएंगे बड़े बड़े आएंगे, सब आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, सब आएंगे. सब चीज़ें आजकल फास्ट होने लगा है, सुना ठहराव वगैरह चीज़ें हैं, कुछ फिल्में, कुछ लिरिक्स, कुछ चीज़ें बाकी है. इमोशन चेंज हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कितना भी इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, दुनिया भर के सीजी फीजी आ जाए, मगर इमोशन रहेगा. और ये शॉर्ट फिल्म्स का एक प्लेटफॉर्म है, वो मुझे तो हमेशा अच्छा लगता था कि जल्दी देख निकल ले. काम भी होता है ना. पहले हम लोग बैठते थे दादाजी की पिक्चरें मस्त मॉर्निंग शोज में, देव साहब की पैसे वैसे उड़ाए, शमी जी पैसे उड़ाए, गाना, हम लोग गाने पसंद थे तो मॉर्निंग शो में जाके गाने वाने देख लेते थे, मज़ा आता था. और कुछ डायलॉग्स अच्छे लगते तो, और एंट्री हीरो का, और गाने के पहले क्लाइमैक्स में गाना, मारा मारी से पहले गाना. तो ये सारी चीज़ें हम अपने मतलब मॉर्निंग शोज में हम लोग ने जो पकड़ा जब टाइम मिला. अभी तो पिक्चर देखना ज़्यादातर छोड़ दिया. अभी लैपटॉप आ गया, फ़ोन पे बैठे बैठे गेम चल रहा है, पूरा मुंह देखिए भी लटक गया नीचे. तो ऐसा ऐसा सब समझ ना. तो 27 किलो का वजन अपना सर का, अपन नीचे जैसा जैसा नीचे जाते 60 ऐसा हो गया तो 27 किलो, थोड़ा ऊपर गया तो 7 किलो, ये 27 ले रहा है अभी. गाड़ी में बैठेगा ना तो दर तो वाट लग जाए. डॉक्टर बन जाओ मैं बोलता हूँ, अभी भी फिजियो बन जाओ, बाकी शॉर्ट फिल्म करते रहो. शॉर्ट फिल्म में आने चाहिए सब लोग को. और प्लेटफॉर्म बन रहा है बॉस, 10-10 मिनट का, 7-7 मिनट का गेम चल रहा है. बड़े लोग देख ले, बड़े पिक्चर देखने वाले भी है ना, देख रहे ना. दंगल बाबा देखा, 2000 खोखा, माशाल्लाह. अपने हिंदुस्तान और आसपास के लोग सब देख के इज्जत करे, बच्चे एक्टर की इज्जत करे, पिक्चर की इज्जत करे. ऐसे मैं चाहता हूँ कि और हो, बड़े भी करें मगर छोटों को चांस दे. तो छोटे से तो बड़ा होता है बाबा, बीज डालेगा तो जाके झाड़ निकलेगा. क्या और कुछ बहुत क्वेश्चन पूछी तूने, वहाँ सब मिल गया सबको. हाँ बोल मैम, बोलो जी. माइक. Hi Jackie sir, बोल. my name is Khushbu Tiwari. I'm from Stardust magazine. जी प्रणाम. I just wanted to ask you, do you personally prefer to do negative roles or is it because people have accepted you like that? नहीं जान, मैं जब आया था स्वामी दादा में तो मैं विलन का रोल किया. शक्ति कपूर साहब का मैं लेफ्ट हैंड बना था, राइट भी नहीं. तो मैं विलन ही बनने आया था, क्योंकि मैं कुछ बनना तो चाहता नहीं था. जब बुलाया तो विलन का ही आ गया. मैं बस सही है यार, लफड़े नहीं गाने वाने के यहाँ वहाँ. मेरे को कुछ ऐसे भी 3 बत्ती पे रह के हम लोग को ये सब गणपति में नाच लिए, हांडी वांडी पे चढ़ के फोड़ दिए, वो सब गेम हो गया. पर फिल्म के अंदर ये कैमरा के सामने गेम खेलने का ज़रा मुश्किल था. गेम अभी भी मुश्किल ही लगता है, हमेशा लगेगा, क्योंकि नेशनल ने ऐसा लगता है सब देख रहे, खाली अपन ही बोल रहे. समझा ना बॉस. तो क्वेश्चन क्या था? सॉरी, माफी चाहता हूँ, फरमाइए. मेरा क्वेश्चन ये था कि पर्सनली आप नेगेटिव रोल्स. हाँ नहीं, स्वामी दादा में मैं आया ही था, क्योंकि इतने खूबसूरत हैंडसम बच्चन साहब, विनोद साहब, मरूम धर्म जी, सारे इतने खूबसूरत लोग. इसके साथ कहा कि हीरो वीरो तो सपना था ही नहीं 3 बत्ती चाली के अंदर. वो तो मिल गया, मॉडल बन गया, रास्ते से किसी ने उठा ली, देव साहब ने बुला लिए, उन्होंने रोल दे दिया और मैंने कर दिया. सुभाष जी ने वो पिक्चर मेरा कोई ऐड देख लिए, बोले इनको हीरो बना दो, एंटी हीरो बन गया. अब प्लान कुछ नहीं किया लाइफ में, प्लान किया ही नहीं बॉस. अपन लगा के सो जाते कि सुबह उठेंगे, किसको मालूम बॉस. बट थैंक यू माय डियर. मैंने प्लान को बोलते हैं, प्लान करना चाहिए, अच्छी बात है, स्ट्रैटेजी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है.
बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान, ये नहीं बोल रहा मगर मैं गधा हूँ, मेरा दिमाग ऐसा है, मैं क्या करूँ यार। मैं अगर प्लान करना शुरू करूँ, बहुत लेट हो गया अभी प्लान करने का, मगर अभी प्लान कर रहा हूँ कि कबर तक किस तरह से अपने बॉडी को संभालूँ, किस तरह से झाड़ वगैरह अच्छा लगाऊँ, किस तरह से अच्छी बातें करूँ, बच्चों को समझाऊँ, पानी छोड़ के, यानी अम्बियर लगा हुआ है पानी के अंदर, कोई सीड में लगा हुआ है, कोई अच्छी बातों में लगा हुआ है, अच्छी चीज़ें फैलाओ, तरक्की करो, बहुत तरक्की करो, मगर उसके साथ में रिग्रेशन ना हो। प्रोग्रेशन के साथ अपने एनवायरनमेंट को रिग्रेस नहीं करना चाहिए, अपन छोड़ के जाना चाहिए, वो चल रहा है। और ऐसे अब ज़हीन बच्चे आएंगे, उनके साथ मुझे काम मिला तो मैं करूँगा, क्या बोलता है 27 किलो याद रखना छोड़ दिया मैंने, मैं ऊपर मैं ऐसे देखता हूँ। हाँ मैम सॉरी। Is Tiger like you or does he have a plan? टाइगर बाबा का एक एक पिक्चर, वो जो हाथ में लिया काम करेंगे। बास्केटबॉल खेलता था तो बास्केटबॉल के अंदर ऐसा खेलता था कि कोई टच नहीं, बाजू वाले स्कूल भी ताली मारते थे जिसको हारा नहीं बोले उन लोग के साथ खेल रहा है, बोले यार तुम लोग हमारी टीम का काम तो बोलने का ये है कि वो अपना फोकस है डालेंगे। एक बार काम में घुस गया ना, फिर इधर उधर कुछ नहीं, बॉम्बे के घोड़े की तरह है अपन, खाली इधर ऐसा लगा दिया, आगे ही दिख रहा है बस, साइड वाइड में कुछ नहीं दिख रहा है, निकलते रहो, समझा। वैसे ही रहना चाहिए इंसान को। पर जैसा मैंने बोला प्लान तो करते, प्लानिंग का क्या मालूम किसके हाथ में है ना। करो प्लान करो, बिंदास करो। मैंने नहीं किया, मैं कर भी नहीं रहा हूँ। हर रोज सुबह उठता हूँ, हाथ पैर ऐसे देखता हूँ, कहाँ कहाँ पेन है, अच्छा यहाँ लगा था ये पेन है, अच्छा आज क्या क्या लफड़े, अच्छा आज क्या क्या आजकल क्या क्या अच्छाई, क्या खुशियाँ, क्या किसके क्या अपन ले रहे आंग पे, तो वो सब निकल गया, दिन निकल जाता मालूम नहीं। तकिया पकड़ा, ऐसी नींद आती कि मालूम नहीं, सुबह लात मार के काम पे चलो, आ गए थैंक यू। हो गया बेटू, बाकी क्या खाना पीना है क्या? 10 क्वेश्चन पूछ डालेंगे, अगर भूख लगी तो निकल लेते, वहां बात करते। पूछ मेरी जान पूछ। अरे तूफान नेशनल है यार वो, डार्लिंग नेशनल एक्टर है। बच्चे लोग के साथ ऐसे ही काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग इतने 220 पिक्चरें करके 230 पिक्चरें करके अपने ऊपर चमड़ी ने चमड़ा चढ़ गया है, समझा बेड़ू, कि अपन लोग एक फॉर्मेट में आ गए ले। मेरे नसीब में था कि मैं अच्छा बुरा बावा ये पुराना नया दुनिया भर का मैं खेलते रहता हूँ। मेरे को क्या अलग अलग किस्म में उन लोग देखते रहते और मेरे को कास्ट करते। क्या बोलते नेशनल एक्टर, नेशनल मालूम है ना, नेशनल अवार्ड विनर है मचिंदर गटकर। 2010 में चैंपियन मराठी फिल्म के लिए इसको नेशनल अवार्ड मिला। ऊंचा एक्टर है डार्लिंग, बहुत मजा आया। मुश्किल काम इन लोग के साथ करना, मैं जैसा बोल रहा था हम लोग इनसे सीख सकते। बड़ा नेचुरल बोलने का स्टाइल, खड़े रहने का स्टाइल, कम एक्सप्रेशन, ज़्यादा एक्टिंग नहीं, बहुत अच्छा काम, बहुत मजा आया डार्लिंग मचिंदर। मैं बोलना उसके बारे में, वो नेशनल लिखना है उसके बारे में, वो उसके लिए मैं एक तो वो मेरे को एक वो भी इंसेंटिव था कि मैं देखूं कि बच्चा जो नेशनल लेके आए उसके साथ में अपनों क्या मिलता है सीखने को डार्लिंग, खींचने का, जिधर भी गया निकाल एनर्जी और दे एनर्जी समझा। So, which kind of direction would you go in ahead? The 80s or the 90s? इमोशन चेंज नहीं हुआ डार्लिंग, आंसू का कलर बदला नहीं और वो ना बदलेगा। वो 50 हो, 40 हो, 30 हो या 100 साल इंडस्ट्री का हो, आंसू का रंग नहीं बदलता है। इमोशंस अपना माँ बाप बहन भाई अमीर गरीब ये वो दुनिया भर का गेम बदलता नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसा अभी लायन किंग में मैं बहुत रोया। लायन किंग में कोई एक्टर नहीं था डार्लिंग, मगर रोया मैं, क्या था तो वो इमोशन था, समझा, बाप का और उसके अंकल का उसके बच्चे का। तो कुछ चेंज नहीं होता डार्लिंग। अपना अभी ये चेंज हो गया है कि अभी फोटो तो मारते आंख बंद करे धड़ा 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 धड़ा, क्यों डिजिटल है। जब फ्रेम हो, जब मालूम है वो करना पड़ता था तो सोचना पड़ता था बॉस, एकदम साले हिले नहीं माँ की आंख पर। अभी क्या अभी आंख दा धन 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 बाबाचा राजा द्या दे भरपूर, तो अपन वो हो गए अभी क्या। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रोलिंग रोलिंग हाँ रोल, ये सब आगे कर, टीवी थोड़ा पीछे और हम लोग को घबरा ले और बाकी का गेम ले। तुम लोग जरा दब जाओ, शूटिंग बढ़ जा, बड़े बड़े छोटे को देख रहा है पीछे से। तूने बहुत क्वेश्चन पूछ दिया, फिर से आ गई या रोलिंग देखिए गाइस, रोलिंग रोलिंग या रोलिंग पूछो यार, क्वेश्चन पूछो।
जैकी सर चिंतन सर के साथ में काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? वही क्या बोलते हैं अच्छा पूछ रहा था, बहुत अच्छा लगा। सर लुक सर कैसे? मैं चाहता हूँ कि हमने मुझे इस रोल में लिया, इससे मेरी जिंदगी की कुछ बातें याद आई। इस फिल्म से ये समझ में आना चाहिए बच्चों को कि बिल्कुल सही पकड़, सही लाइन पकड़। एक बार खुफिया में निकलना मुश्किल है, क्योंकि लास्ट में वो फोन लेता है, मुश्किल है, वही करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। वेल डन बॉस चिंतन, चिंतन को पूछो, हमारा डायरेक्टर को पूछो डायरेक्टर। इधर आजा पूछो, ये मेरे से 10 क्वेश्चन पूछो, बोली इधर का डायरेक्टर को शानी। इंसान डायरेक्टर होता है, हम लोग जैसे एक्टर होता है भाई, ये कम मिलती। मेरा बेसिक थॉट तो ये था कि कभी कभी लाइफ में सेकंड चांस नहीं मिलता है, सो लीक एग्जिस्टेंस होता है और समटाइम्स ऐसा कंडीशनिंग होता है लाइफ में, स्टार्ट ऑफ यू हैव टू हैप्पी एंडिंग। अरे ये कौन रिकॉर्डर खड़ा किया है? मुझे नेसेसरीली कोई सोशल मैसेज नहीं देना था, मुझे खाली एक स्टोरी अच्छी तरह से कहनी थी। सो वही दैट इज़ व्हाई आई डिडंट गिव अ हैप्पी एंडिंग। आई सेड समटाइम्स कुछ हो नहीं सकता, अगर एक ऐसे हालात में आप पैदा हुए हो, ऐसे हालात में आप बड़े हुए हो, तो कभी कभी कोई रास्ता नहीं होता। सब काफ़ी लोग बोलते हैं कि सबके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होती है, एक्चुअली नहीं होती। एक्चुअली काफ़ी लोग कुछ नहीं करते। जो करेंगे वो एक्चुअली सॉरी द स्क्रीनिंग वाजंट गुड, इट वाज वेरी पिक्सेलेटेड, बट आज 7 बजे रिलीजिंग ऑन यूट्यूब एंड ऑन सेंट्रल ब्लॉक शॉट फिल्म्स प्लेटफॉर्म, सो यू कैन कैच इट देयर। सर कहानी की अगर बात करिए तो क्यों फिर आगे नजदीक? हाँ आने की आदत हो गई है सर। हाँ बोल ये सही है, अपना काम पूछो। हाँ ओके सर, कहानी में क्या सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लगा कि जो आपको लगा कि ये वाली फिल्म आपको करनी चाहिए? इस कहानी में ऐसा इस बच्चे को उस राह पे नहीं डालना चाह रहा था जिस राह पे मैं चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि वो चाय का धंधा कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मेहनत का कमाया, हराम का कमाई नहीं है, वो कमाए, अपने आप को संभाले। पर उसकी कहानी समझता हूँ और फिर किस तरह से मेरी ज़िंदगी में क्या मैं सोचता हूँ। तो आप पिक्चर देखो ना बड़ू, बाकी मैंने किया कि वो बच्चा वो नहीं करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ। समझे बॉस? सर लगता है कि एक मैसेज जाएगा इस फिल्म को देखने का। मेरे को नहीं मालूम, अभी तेरे पे ना तो कितना पहुंचाता। हम लोग तो अपनी कोशिश कर लिए, तेरे के ऊपर है ना डार्लिंग। चल तेरा डब्बा भर के निकल ले। बहुत सारी बननी चाहिए। जैसे से देखा जाए तो पूरा इंडस्ट्री आपको वीडियो के नाम से जाना जाता है, ये नाम कहाँ से भैया अभी आगा करेंगे, सब गले में घुस जाएंगे, हलक में घुस जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। सर जैकी सर सारा इंडस्ट्री आपको भिड़ू बोलता है, भिड़ू के नाम से जाना जाता है, ये नाम आपको कहाँ से पड़ा? तो पढ़ा नहीं यार, ये मुंबई का भाषा। भिड़ू मतलब दोस्त को बोलते रहे, कहीं बोलते ना क्या बंधु, बंधु बंधु, कोई बोलता है वो दोस्त तो बोलते हैं ना, वैसा है यार चिंतन। थैंक्स। चल बॉस चल।